Good morning, students. The last topic of your syllabus is wage fixation in India. So basically, fixation of wage is a recent phenomenon in India. There was no effective machinery till Second World War for the settlement of dispute which are related to the fixation of wages. तो ये बहुत ही रिसेंट ओरिजिन का है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री एंड आफ्टर दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल रिलेशन became a major issue and there was a phenomena increase in industrial dispute due to the wages and salary of the workers which lead to the loss of production substantially. So realizing the industrial peace is essential for progress of the industrial as well as the economic front. The central government convened in 1947 and a tripartite conference, tripartite मतलब जहाँ पर तीन पार्टीज थी, एम्प्लॉयर्स, लेबर एंड गवर्नमेंट, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस करी एंड देन दे डिसाइडेड टू पुट फॉरवर्ड दिस इशू ऑफ वेज फिक्सेशन इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इन 1948. Statutory fixation of minimum wages. So it includes certain points like promotion of fair wages. कल मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेजेस इन इंडिया. फर्स्ट इज द मिनिमम वेज जो कि बेयर सब्सिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि उसके जो भी लाइवलीहुड है एम्प्लॉय का, उसके डिपेंडेंट्स की एजुकेशन, स्पेशली चिल्ड्रन की एजुकेशन और कुछ मेडिकल अलाउंसेज आते हैं. ऐसे ही आपका लिविंग वेजेस होता है जो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है. फेयर वेजेस लाई समवेयर बिटवीन द मिनिमम वेजेस एंड द लिविंग वेजेस. So to achieve first objective, the Minimum Wage Act 1948 was passed to lay down certain norms and procedure for determination of and the fixation of wages by the central and state government. To achieve the second objective of the wage policy, Government of India appointed in 1949 a tripartite committee on the fair wage to determine the principles on which the fair wages should be fixed. Wages and salary incomes in India are fixed through several institutions. Okay, so बहुत सारे mechanisms हैं, methods हैं जिनके थ्रू वेज और सैलरी फिक्स होती है, जिसमें कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल वेज बाउंड्स, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड पे कमीशन हैं, ये सब कुछ आते हैं. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस. First is collective bargaining. Collective bargaining relates to those arrangements under which wages and conditions of employment are generally decided by agreements negotiated between the parties, जिसमें कि employer और employee के representatives होते हैं, जो कि सैलरी और जो वर्किंग कंडीशंस हैं या वेज कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं. Broadly speaking, the following factors affect the wage determination by कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस. कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में क्या क्या इश्यूज रहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं? ऑल्टरनेट चॉइस एंड डिमांड्स, इंस्टीट्यूशनल नेसेसिटीज, द राइट एंड कैपेसिटी टू स्ट्राइक. इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेजेस आर डिटरमाइंड by collective bargaining in contrast to the individual bargaining by the workers. Okay, so collective bargaining में क्या हो रहा है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे लेबर्स को, उनकी जो कंसेंसस है, जिस चीज पर सर्वसम्मति है कि हाँ इस तरीके का वेज रेट होना चाहिए, वेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं. इन द मैटर ऑफ वेज बार्गेनिंग, यूनियंस आर प्राइमरीली कंसर्न विद general level of wage rate, structure of wage rate, differential among occupations, bonus, incentive, fringe benefits and the administration of wages. Okay, so these are the issues which are considered in the collective bargaining, जिसमें कि wage एक बहुत महत्वपूर्ण issue है, point है. Then next is industrial wage boards. Concept of wage board was first enunciated by Committee of Fair Wages. It was commended by or recommended by the first 5-year plan and second 5-year plan. Also considered wage board as an acceptable machinery for setting wage disputes. तो वेज बोर्ड इंडिया में दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड जो कि बाइपेटाइट होते हैं, दूसरे होते हैं ट्राइपेटाइट वेज बोर्ड. स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड मीन्स अ बॉडी सेट अप बाय लॉ or with legal authority
टू एस्टैब्लिश मिनिमम वेजेस। एक बाय लॉ एक बॉडी सेटअप हो रही है, स्टैट्यूटरी मतलब जो कि लीगल है, संवैधानिक है, ओके, कानूनी है। तो ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी बॉडी है लीगल अथॉरिटी से सेट की गई जो कि मिनिमम वेजेस को एस्टैब्लिश करने के लिए वर्क करता है, और एंड ऑल्सो इट वर्क्स टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच आर देन लीगली एनफोर्सेबल इन पार्टिकुलर ट्रेड और इंडस्ट्री टू विच द बोर्ड्स डिसीजन रिलेट। तो बेसिकली ये मिनिमम वेजेस और बाकी स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेट करता है और लीगली उसको एनफोर्स कराता है, ओके, द वेज बोर्ड। ट्रिपार्टाइट वेज बोर्ड जो है दूसरे प्रकार का, ये एक वॉलंटरी नेगोशिएटिंग बॉडी है जिसमें कि अगेन देयर आर थ्री पार्टीज, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, द वर्कर्स और द लेबर यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, जो एक ऑर्गेनाइज मैनर में जो वेज एंड सैलरी हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज पर डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स, वेज रेट्स, वेजेस टू द वर्कर्स एंड द रिलेटेड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट which may include the working conditions etc. Then wage board decisions are not final and are subjected to either executive or judicious review or reconsideration by other authority or tribunal. wage board का जो डिसीजन है फाइनल नहीं होता है, इसको आगे फर्दर जो भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल रिव्यू है वो उसमें रिक्वायर्ड होता है, और रिकंसिडरेशन बाय द अदर अथॉरिटीज, ओके। द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ वेज बोर्ड्स आर सेम as those of the Industrial Tribunal situated under the Industrial Dispute Act 1947। तो इसकी पावर भी ऑलमोस्ट इक्वल होती है IDA के ट्रिब्यूनल के, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि बहुत मेजर एक्ट है लेबर लॉज में टू सेटल डाउन वेरियस डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ओके, उसी के इक्वल होती है। देन द नेक्स्ट इज pay commissions. Pay commissions basically they work in the government organization and those private sectors and the private institutions where certain statutory framework is there or labor laws is there the pay commission is applied. So the first pay commission was appointed by Government of India in 1946 under the chairmanship of Justice Vardacharya to inquire into the conditions of service of central government employees। तो बेसिकली जो फोकस था फर्स्ट पे कमीशन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सर्विस कंडीशंस पर ही था। द वर्दाचार्य कमीशन और द फर्स्ट पे कमीशन इन इट्स रिपोर्ट सेड दैट इन नो केस शुड अ मेंस पे लेस देन द लिविंग वेज। जो हमारी लिविंग वेजेस होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम तो आपको पता है मिनिमम वेजेस होती हैं, देन फेयर वेजेस होती हैं, उसके बाद लिविंग वेज। तो एटलीस्ट लिविंग वेजेस शुड बी पेड टू ईच एंड एवरी वर्कर। द सेकेंड पे कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1957 जब आपका एक तरह से सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, उस ड्यूरेशन में आया था। एंड कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट इन 1959 एग्जामिन्ड द नॉर्म्स for fixing a need-based minimum wage setup 15th session of ILC। तो इनका भी यही था कि मिनिमम वेज सेट किया जाए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 15th सेशंस रिकमेंडेशन। The Government of India appointed the third commission in 1970s which submitted its report in April 1973. In this report, commission expresses its support for a system in which pay adjustments will occur automatically upon an upward movement in consumer price index। तो बेसिकली जो थर्ड पे कमीशन था उसका फोकस था अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक तरह से इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में बताता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो वेजेस हैं वर्कर्स के दैट शुड बी सेटअप और द पे शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द CPI और द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Then after 13 years, government appointed the fourth Central Pay Commission, and which was under the chairmanship of Justice P.N. Singhal, and it was implemented in 1983 to examine the structure of all central government employees, including those of union territories. If we see till then, prior to this fifth pay commission, the salaries of the government employees were not too much. It was
almost less, because it depends upon the economic development of the country also, and till that time our country was not that developed economically and the national income was not that much, industrial development भी उतना नहीं हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेज थी. बट व्हेन the fifth pay commission came in 1996, they made certain recommendation regarding the restriction of the pay scale, and in the sixth pay commission, which was implemented in 2008, as it submitted its report in 2006, the government employees experienced a good hike, a drastic hike in their salaries, and the seventh pay commission was established in 2017, which is the current pay commission, which is working for the government officials, and it is marked by the 14% pay hike in the salary of the government officials in India. Then the next is adjudication. Okay, तो पे कमीशन से हम वेज रेट सेट करते हैं, वेज फिक्सेशन करते हैं, वेज बोर्ड से करते हैं, देन collective bargaining से करते हैं. These are certain mechanisms, and another mechanism is adjudication. Since independence, adjudication has been one of the main instruments for settlement of disputes, improvement in wage scales and standardization of wages and allowances. Basically adjudication एक ऐसा mechanism है जिसमें कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, एंड एट द सेम टाइम देर विल बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो. सो इट इज अ थर्ड पार्टी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, और वी कैन से इट्स अ ट्राइपार्टाइट. ट्राइपार्टाइट मतलब जहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है अदर देन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर. ओके, सो यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं एडजुडिकेशन में, वहां पर भी दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द settlement of industrial dispute, and the matter relates to the wage fixation sometimes, and it is also related to the elements in their work and functioning. This is because of large of the dispute concerned to the wage and allowance. ज़्यादातर जितने disputes होते हैं industrial disputes and employer और employee के बीच में, वो होते ही उनका मेन मुद्दा ही wage and allowances होते हैं. ओके, सैलरी से रिलेटेड होते हैं या वर्कर्स रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन से रिलेटेड होते हैं. न्यूमरस वेज डिस्प्यूट्स इन मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिगार्डेड फॉर द एडजुडिकेशन टू द लेबर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ड्यूरिंग पास्ट 10 डिकेड्स. तो हाई कोर्ट में तो ये एडजुडिकेशन प्रोसेस होते ही होते हैं, बट इट इज ऑल्सो सीन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो एडजुडिकेटेड अपॉन सच डिस्प्यूट्स. The awards given by these authorities not only helped in formulation of a body of principles governing the wage fixation, but laid foundation for present wage structure in many of the major industries. Some major legislation which governs the principle of wage fixation, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेज फिक्सेशन से या वेज पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स होते हैं, लेजिस्लेशंस होते हैं. दे आर द मिनिमम वेज एक्ट 1948. जब भी आप ये एक्ट्स इनेक्टमेंट्स लर्न करें, याद करें, उस टाइम पे आप ईयर्स का जरूर ध्यान रखें कि जो भी पर्टिकुलर ईयर, कौन सा एक्ट किस ईयर में आया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 and so on. So minimum wages in India, legislative protection for worker to receive a minimum wage can be considered as the hallmark of all progressive nations. तो एटलीस्ट मिनिमम वेज तो मिलनी ही चाहिए वर्कर को. अगर मिनिमम वेज तक नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट या वो पर्टिकुलर कंट्री, तो इट मीन्स दैट इट इज अ वेरी अंडर डेवलप्ड कंट्री. तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस सिंबल फॉर एनी कंट्री ऑल्सो. Okay, so in India, the Minimum Wage Act 1948 provides for the fixation and enforcement of minimum wages in respect of the scheduled employments. The Act aims to prevent sweating or exploitation of workers according to the NSSO 2004-5 61 around 395 million workers, that is the 86% of the total workforce of around
457 million workers constitute the unorganized informal sector. तो एक मेजॉरिटी आप देखिए जितनी टोटल वर्कफोर्स है इंडिया में, स्पेशली द लेबर क्लास, उसका 86% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है. तो उन लोगों को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट 7% ऑफ दोज एम्प्लॉयड इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. In the organized sector has been identified as informal workers. इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर भी जो 7% वर्कफोर्स काम कर रही है लोअर लेवल में, वो भी एक तरह से अनआइडेंटिफाइड है और अनरजिस्टर्ड है. तो उन लोगों के लिए एक पेमेंट ऑफ लो वेज जो है वो एक इश्यू है. और टू एंश्योर अ मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज फॉर दोज वर्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट. The Act also requires the appropriate government, both center and state, to fix minimum rates of wages in respect of employment specified in the schedule, and also review and revise the same at intervals not exceeding the 5 years. So, currently the number of scheduled employment in the central sphere is 45, whereas in the state sphere is 1596. Okay, तो ये जो डेटा है ये अभी कुछ साल पुराना है. यू कैन ऑल्सो अपडेट दिस. विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2009 द नेशनल फ्लोर लेवल ऑफ मिनिमम वेज हैज बीन इंक्रीज टू ₹100 पर डे फ्रॉम ₹80 पर डे. ओके, सिंस द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन एम्पावर्ड टू इंडिपेंडेंटली फिक्स minimum wages, disparities between the wage in neighboring state are common. In order to reduce this problem and bring comparability, the central government has set up 5 regional committees for the harmonization of minimum wages. So that's it about today's lecture, in which we discussed about the wage fixation in India. So keep studying, students, and ask me if you have any query or doubt.